ओके कल am I audible है? Am I audible? Yes, sir. ओके कल हम लोग कनेक्टिंग डिवाइसेस के बारे में पता किए थे। कल हम लोग कनेक्टिंग डिवाइसेस के बारे में अबाउट नेटवर्क लेयर मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा बट स्टिल इट कम्स अंडर नेटवर्क लेयर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। बट कनेक्टिंग डिवाइसेस के बारे में कल हम लोग पता किए थे। कल हम लोग पढ़े थे कनेक्टिंग डिवाइसेस, हाउ मेनी टाइप ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस आर देयर। नाउ टुडे how we can today we will use how we can connect the LAN, as well as how we connect the LAN as well as virtually LAN. Virtual LAN means from software, not according to the hardware, but using some software. How we can connect two LANs, two or three or four LANs. ये अब जो मैं आज पढ़ने वाला हूँ that is not exactly devices. How we can connect this? That means what should be structure? What should be the structure to connecting that particular a LAN, two LANs, three LANs, that particular thing. LAN के बीच में please take understand very carefully LAN, man and WAN. Differentiate that LAN, man and WAN. LAN कभी भी एक नेटवर्क मतलब दो नेटवर्क के बीच में नहीं हो सकता। LAN must be a within a single network. So LAN को अब कनेक्ट कैसे करेंगे? Please try to recognize that what I am trying to say. That is LAN. I am exactly using the word LAN. I am not using WAN or that particular thing man or WAN मैं नहीं बोल रहा हूँ। This is specifically LAN. That means हम लोग पूरा होल इंटरनेट नहीं बोल रहे हैं। अगर 10 कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड है, 10 कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड है, दैट इज लैन, दैट इज द लैन। अब ये अगर मान लो तुम्हारे पास चार चार इस तरह का लेबोरेटरी और चार लैब में चारों में तुम्हारा अलग अलग लैन बना हुआ है। नाउ वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विदिन दैट पर्टिकुलर लैन इन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। चार पांच लैन को मैं कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूं। दैट इज योर how we can connect this thing by using backbone network. So these next two topics is actually our topic today: backbone network and virtual network. This backbone virtual LAN, here connecting LANs we have already gone through, that is devices. The how many devices, what is the devices that we can use to combine a LAN. LAN को बनाने के लिए हम लोग कैसे उसको कर सकते हैं। बट today's topic is how we can use that, how we can connect the particular LANs, 2 3 4 LANs. Now what should be the structure you have to maintain? This is very easy actually class. कोई बहुत भारी भरकम चीज है नहीं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। दैट जस्ट सिंपल थ्योरी टाइप का है ये। सो ए बैकबोन नेटवर्क अलाउज सेवरल लैंस टू बी कनेक्टेड। सो मल्टीपल लैंस को मैं कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ थ्रू बैकबोन नेटवर्क। व्हाट शुड बी द बैकबोन? मैक्सिमम केसेस हम लोग दो तरीके का बैकबोन यूज करते हैं। वन इज बस बैकबोन एंड सेकेंड इज स्टार बैकबोन। सो जनरली वी आर यूजिंग टू टाइप्स ऑफ backbone network, that is bus backbone and star backbone, and there are third one also, that is remote LAN. How we can connect remote LAN? Using bridge. So तीन तरह का, बेसिकली तीन तरह का जो डिवाइसेस है वो डिवाइसेस मैं यूज करता हूँ यहाँ पे। एंड यूज करने के बाद ये बस नेटवर्क, बस बैकबोन बन सकता है, स्टार बैकबोन बन सकता है एंड रिमोट लैन बन सकता है यूजिंग
bridge. So that is the three thing actually we can do. So here, so these three thing actually we will go through backbone networks. Backbone networks के अंदर यही तीन चीज मैं सीखूंगा, बस बैकबोन, स्टार बैकबोन एंड हाउ टू connecting the remote LAN. Remote LAN is in bridge, but using bridge. So in bus backbone, basically bus is the connector. So basically backbone is a bus. So that means simply try to understand, bus के थ्रू मैं एक दो लैन को कनेक्ट करने का कोशिश करूंगा. बट अगर मैं बस यूज करूंगा, डेफिनेटली देयर मस्ट बी ए डिवाइसेस, अगेन देयर मस्ट बी ए डिवाइसेस इज ब्रिज. सो हियर you can see in this way structure, you should follow this. If please, अगर ये structure follow हो रहा है, then it is called bus backbone. Here we can see, here is two LANs, here is two LANs, multiple LANs, and within that LANs a bridge is working. In between bridge there must be a backbone, and that backbone you may connect in a bus. So simple, one wire can connect two LANs, three LANs, four LANs. One wire, simple wire, that wire is called backbone. It is a bus backbone when a wire is used to connect this. But specifically, you directly not connect to the bus. LAN के साथ कभी भी ये डायरेक्टली उस बस के साथ डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होगा, बीच में एक ब्रिज वर्क करेगा. A bridge you must connect in between this bus and a LAN. So here you can see LAN जो कनेक्ट हो रहा है, LAN जब कनेक्ट हो रहा है, ये भी एक LAN के तरह यूज हो रहा है. This is also a LAN के तरह ट्रीट होगा. This also is a LAN, ये LAN के तरह ही कनेक्ट होगा. So here you can see, here backbone बस में जो बस यूज हो रहा है, that bus is also like a LAN वर्क करेगा. इसमें no devices are there, but it always treat as a LAN, as a separate LAN. जो LAN ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है, दो LAN के बीच में ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है. That a simple technique is used by in bus backbone network. This is a very theoretical चीज. In this way दो तीन LAN को भी कनेक्ट किया जा सकता है. Now स्टार बैकबोन में एक स्विच यूज किया जाएगा बस के बदले. इस बस जो यूज हो रहा था बस बैकबोन में, स्टार बैकबोन में स्विच यूज किया जाएगा. स्टार बैकबोन में स्विच किया जाएगा, जस्ट बैकबोन इज योर जस्ट वन स्विच. बस स्टार बैकबोन में एक स्विच यूज किया जाएगा. ये जनरली हम लोग यूज करते हैं, वेरी यूजफुल टेक्निक, एंड दैट टेक्निक, दिस टेक्निक एक्चुअली यूज्ड इन नाउअडेज. बस बैकबोन बहुत रेयरली यूज होता है, बट स्टार बैकबोन जनरली हर जगह यूज होता है. You can connect two LANs, three LANs by using switch. 2-3 LANs हम लोग स्विच के थ्रू कनेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग का कॉलेज में यही चीज यूज किया हुआ है. देयर आर मल्टीपल स्विचेस, एंड वो स्विच से थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं मल्टीपल LANs को. बाकी सारे दो तीन लैब का कनेक्शन, जैसे ये हम लोग का कॉलेज में लैब 2 जिसमें लैब 2 में जिसमें तुम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम किए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम जिस लैब में हुआ था फॉर CSE स्टूडेंट, उसमें एक स्विच है जिस स्विच में सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस स्विच में सारे लैब से तार आके वो स्विच से कनेक्ट होता है. सारे लैब से तार आके वो स्विच से कनेक्ट होता है. उसमें एक मेन स्विच लगा हुआ है, एंड वन सर्वर मशीन से भी एक LAN जाके वहां पे जुड़ा हुआ है. In this way they are connected, and सर्वर जब कोई भी डेटा भेजता है, दैट इज इंटरनेट जो भी आता है, इंटरनेट लैब सर्वर से जब भी आता है, सर्वर से जब इंटरनेट पहुंचेगा, वो उसके बाद स्विच डिस्ट्रीब्यूट करता है हर लैब में नेट को. सो ये कनेक्टर, ये दिस वे एक्चुअली
वी आर यूजिंग जनरली, दिस इज स्टार बैकबोन हमेशा यूज होता है। स्टार बैकबोन में हमेशा एक स्विच के थ्रू कनेक्टेड होगा हर लैन से एक पोर्ट आके उस स्विच से जुड़ जाएगा। एंड उसके बाद वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी एक लैन में, मतलब ये स्विच जैसे कि ये लैन लगा हुआ है ना, ये लैन डायरेक्टली यहाँ पे बस होगा तो बस में जाकर कनेक्ट होगा। अगर ये भी एक स्टार नेटवर्क से बना हुआ है, ये लैन भी अगर ये स्टार नेटवर्क से बना हुआ है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, ये स्विच अगर ये लैन स्टार नेटवर्क है, ये तो स्टार लैन से कनेक्ट करने के लिए, बट ये जाने के बाद यहाँ पे इस लैन में भी जाके सीधा ये एक स्विच पे घुसेगा। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, एंड दैट स्विच आल्सो डिस्ट्रीब्यूट दैट पर्टिकुलर लैन machines। यहाँ पे सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर तुम्हारा ये स्टार बैकबोन यूज हो रहा है फॉर कनेक्टिंग दैट पर्टिकुलर लैन इस मल्टीपल लैंस, बट ये बैकबोन के बाद अगर ये लैन के अंदर एक पर्टिकुलर लैन भी, अगर सिंपल लैन कैसे कैसे हो सकता है, लैन का टोपोलॉजी मल्टीपल हो सकता है, मेश टोपोलॉजी यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली ये कोई ना कोई मशीन से जुड़ा हुआ होगा। बट अगर तुम स्टार टोपोलॉजी यूज कर रहे हो या बस टोपोलॉजी यूज कर रहे हो, तो जो मेन बैकबोन का बस होगा, वो बस यहाँ पे जाके घुस जाएगा, वो बस कनेक्ट हो जाएगा इससे। ये लैन पर्टिकुलर इस लैन का बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे ये स्टार टोपोलॉजी, यहाँ पे भी स्टार टोपोलॉजी यूज हो रहा है लैन में, तो ये यहाँ पे भी ये स्विच टू एक स्विच में जाके ये घुसेगा, ये तार स्विच टू स्विच होगा, एंड उसके बाद वो स्विच से ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर लैन के साथ, मतलब हर मशीन के साथ ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वहां पे एक स्विच होगा, वो स्विच फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5, मशीन 6। इन दिस वे these things are connected. So that is a star backbone network. तो स्टार बैकबोन में किस लिए बोल रहा हूँ, टोपोलॉजी होता है एक सिंपल पर्टिकुलर लैन का। प्लीज स्पेसिफिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या डिफरेंशिएट है। तुम बोलोगे सर ये तो इजी था, बट समझना इतना ही है तुम्हें, इजी है, ये बहुत इजी टॉपिक है, बट तुम्हें समझना इतना है कि ये सेम थिंग हम लोग टोपोलॉजी में भी सीखे थे, बट टोपोलॉजी होता है विद इन ए लैन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर विद इन ए लैन तुम कैसे, ये कंप्यूटर मशीन कनेक्टेड है विद इन ए लैन, कैसे ये एक मल्टीपल मशीन कनेक्टेड है, उस चीज को करने के लिए हम लोग टोपोलॉजी का यूज करते हैं। बट नाउ वी आर हियर कनेक्टिंग मल्टीपल लैन्स। तो मल्टीपल लैन कनेक्शन के लिए भी जनरली 2 वेज हम लोग फॉलो करते हैं। ये दूसरा वे था, 2 नहीं 3 वेज मैं बोलूंगा, एक और रिमोट लैन आएगा, बट फर्स्ट वन इज बस, विद इन ए बस, एक बस यूज करेंगे, और वो मल्टीपल, जब भी कोई लैन से जुड़ने का होगा, लैन एक ब्रिज से जुड़ा हुआ होगा, लैन पर्टिकुलरली एक ब्रिज से जुड़ा हुआ है, और ब्रिज इस बस को कनेक्ट कर रहा है। अगर 4-5 लैन है तो 5 लैन है तो 5 ब्रिज होगा, और वो ब्रिज को कनेक्ट करेगा एक बस के थ्रू, जो कि मैंने पिछले इसमें दिखाया था, पिछले टॉपिक में दिखाया था। ये हर लैन के लिए एक ब्रिज होगा, हर लैन के लिए एक ब्रिज होगा, और वो ब्रिज से कनेक्टेड होगा, और वो ब्रिज को कनेक्ट करेगा एक बैकबोन नेटवर्क, दैट इज ए बस नेटवर्क, बस बैकबोन। So this is one way. This is second way. हर लैन से डायरेक्टली एक बैकबोन के साथ जुड़ा हुआ है। अब लैन के अंदर क्या मशीन, कैसे ये लैन है, that does not matter for this particular star backbone. So this is the thing, star backbone will work. Now this is remote LAN. Please try to understand, this is not using any devices. कोई बस भी नहीं होगा, कोई पर्टिकुलरली स्विच भी नहीं होगा। रिमोट लैन क्या बोल रहा है, मल्टीपल ब्रिज डायरेक्टली 1 to 1 पॉइंट से जुड़ा हुआ होगा।
मल्टीपल ब्रिज पॉइंट टू पॉइंट लिंक से जुड़ा हुआ है, पीपीपी मोड. So that here actually PPP, that protocol will used. This PPP protocol will used in this particular point. जैसे हम लोग यहाँ पे जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा, जब अगर मान लो इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के पास डेटा भेजना है, so ये it will follow this bridge point to point link to this bridge, this point to point to this bridge, and then it will come to here. So point to point protocol, point to point link means यहाँ पे फ्लो कंट्रोल का बहुत ज्यादा जरूरी है. यहाँ पे कभी भी एक साथ 2 मशीन 3 मशीन डेटा सेंड नहीं कर पाएगा. यहाँ पे फ्लो कंट्रोल बहुत जरूरी है. सो अब यहाँ पे this particular LAN actually very slow, but कभी भी ये कोलिजन नहीं ओकर करेगा. थोड़ा स्लो है बट कोलिजन कभी नहीं ओकर करेगा. That is one way to connect remote LANs. This is called remote LAN. No any devices in between two bridges. हर एक सिस्टम के हर एक LAN एक ब्रिज से जुड़ा हुआ होगा, और ब्रिज के बीच में एक बस से नहीं जुड़ा हुआ है. सिंगल बस से सारे कनेक्टेड नहीं है. ये 1-to-1 लिंक होगा एक एक ब्रिज के साथ. हर एक ब्रिज एक ब्रिज के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है. दिस इज कॉल्ड रिमोट. ये इस ब्रिज के साथ इस ब्रिज का कनेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिकॉज ये ब्रिज का दोनों साइड जुड़ा हुआ है ऑलरेडी. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ब्रिज हमेशा पॉइंट टू पॉइंट, हर एक ब्रिज एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है. कोई भी 2 ब्रिज या 3 ब्रिज के साथ ये जुड़ा हुआ, कोई भी एक ब्रिज के साथ ये जुड़ा हुआ होगा पॉइंट टू पॉइंट लिंक से. दिस इज पॉइंट टू पॉइंट लिंक. दिस इज वन हियर. एक अगर सिंगल पाथ यहाँ पे कनेक्टेड है, तो सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे पीपीपी प्रोटोकॉल एंड फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड एज वेल एज द चैनलाइजेशन एंड all this technique here you must use remote LAN for doing that remote LAN. सेंडिंग में फ्लो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोलिजन होने का चांसेस बहुत ज्यादा. ओके, दिस मच इज कनेक्टिंग remote LAN. This is remote LAN. So these three ways are there to connecting multiple LANs. One is bus, one is duct, and then remote LAN. Now these point to point links act as a LAN, and in a remote backbone connected by the remote bridges. So bridge के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है. Now we are moving towards the virtual LAN. Now where we need this virtual LAN? Please try to understand. मान लो कोई कंपनी है, कंपनी में एक प्रोजेक्ट रन हो रहा है. एक सिंगल प्रोजेक्ट का मल्टीपल पार्ट्स है. कोई डिजाइन फेज कर रहा है, कोई सिंपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड. कोई अगर मान लो मतलब इस तरह का 3 पार्ट में या 4 पार्ट में जो भी जुड़ा हुआ है, जो भी बांटा हुआ है, दैट मीन्स कोई अगर ग्रुप ऑफ पीपल्स मल्टीपल जगह 4 पीपल या 5 पीपल एक साथ डिजाइन फेज में काम कर रहा है. 5 पीपल फिर सिर्फ एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन डॉक्यूमेंटेशन में काम कर रहा है, और 4 पीपल है जो 4 पीपल सिंपल वो कोडिंग पार्ट में काम कर रहा है. तो अगर ये 3 अलग अलग पार्ट में काम हो रहा है एक सिंगल प्रोजेक्ट का, और मल्टीपल प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मल्टीपल प्रोजेक्ट यहाँ पे तीन ग्रुप 3 अलग अलग प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है. तुम्हारा एक कंपनी है. अब कंपनी वाला क्या कर रहा है कि हाँ, उसी हिसाब से जैसे ये टीम बना हुआ है उसी हिसाब से लैन प्रोवाइड किया है. दैट मीन्स जब भी कोई मैसेज उसी हिसाब से लैन प्रोवाइड किया है. दैट मीन्स जब भी कोई मैसेज यहाँ पे, दिस इज ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज हो, जब भी कोई पर्टिकुलर एक बैच के लिए मुझे मैसेज सेंड करना है, मैं उस पर्टिकुलर लैन में बैच सेंड करूंगा, कोई मैसेज सेंड करेंगे, बाकी दूसरा लैन में वो मैसेज सेंड नहीं होगा. दैट मीन्स
मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, मैं तीनों प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूं। मैं अगर प्रोजेक्ट ए को, टीम ए को मैं कोई मैसेज भेजना चाह रहा हूं, मैं उस पर्टिकुलर लैन में जाके मैसेज शो कर दूंगा और ब्रॉडकास्ट करूंगा, उस पर्टिकुलर लैन में जाके मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा। तो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज नीडेड। उस पर्टिकुलर लैन में जाके ब्रॉडकास्ट कर दिया, चारों के पास वो पहुंच गया, या पांच, जो जो भी पांच पीपल था सबके पास वो मैसेज चला गया। सो दैट, फॉर दैट थिंग, ये चीज को मैनेज करने के लिए वो लोग यही चीज फॉलो करता है कि हाँ, हम उसी हिसाब से लैन क्रिएट करेंगे, उसी हिसाब से लैन बनाएंगे। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, अगर फिजिकल लैन, यहाँ पे फिजिकल लैन से कनेक्ट कर दिया गया, ये चार पीपल सेम तार से जुड़ा हुआ है, ये तीन पीपल प्रोजेक्ट बी जो तीन चार पीपल कर रहा था, इसके लिए उसको स्पेशली कनेक्ट कर दिया गया। कोई और ग्रुप काम कर रहा है, उसको भी सेपरेटली एक लैन बना दिया गया। अगर ये फिजिकली करना पड़ेगा, अब कुछ देर बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद सिंपली वी आर ट्राइंग टू मेक दिस, दैट मीन्स एक स्विच से हम तीन चार ग्रुप में बांट दिए और तीन चार ग्रुप में ये पीसी को कनेक्ट कर दिया। दैट मीन्स जब भी मुझे डेटा सेंड करना होगा, इस ग्रुप को मैं इस पोर्ट के थ्रू डेटा सेंड कर दूंगा, सबके पास चला जाएगा, इस पोर्ट के थ्रू डेटा सेंड करूंगा तो सबके पास चला जाएगा। ये एक्चुअली हम लोग फिजिकली करने का कोशिश किए। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर मान लो कुछ दिन बाद क्या हुआ, ये थोड़ा स्लो हो गया, ये थोड़ा स्लो हो गया। अब जैसे ही स्लो हुआ, मैं चाहूंगा मैं चाहूंगा यहाँ का 2% यहाँ पे आके काम करे, एक्सचेंज कर रहा हूं, ये थोड़ा फास्ट चल गया, इसका काम थोड़ा सा खत्म होने को है, इसका काम थोड़ा खत्म होने को है, तो इसका 1 या 2% को मैं इसके साथ जोड़ दूंगा। तो फिजिकली अगर ये किया हुआ है इस तरह का, तो मुझे फिर लैन को चेंज करना होगा। टोटल लैन, अगर फिजिकली वो चीज बना हुआ है, टोटल लैन को मुझे चेंज करना होगा। दैट इज द वेरी प्रॉब्लमेटिक टास्क। और कुछ देर बाद क्या हुआ, जैसे ही इसको थोड़ा सा आगे चला गया, ये थोड़ा जैसे ही 5 लोग यहाँ जुड़ गया है, तो थोड़ा सा आगे ये लोग फास्ट चला गया, और वो लोग क्या किया, फिर से देखा कि ये स्लो पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 लोग नहीं है, तो फिर से इसको 1 हफ्ता बाद, कभी कभी क्या होता है, ये वीकली भी इस तरह का चेंज करने का जरूरत पड़ता है, कंपनी में ये होता है, ये जरूरत होता है कि अगर वीक में देखा हाँ ये स्लो है, थोड़ा सा ढकेल दिया उसको उसमें, तो थोड़ा सा फास्ट करके फिर ये बैक किया अपना अपना ग्रुप में। जैसे कि अपना अपना ग्रुप हुआ, क्या होगा, तो फिजिकली अगर इस लैन को तुम्हें करना है, हर 3-4 दिन में एक बार लैन चेंज करना होगा। सो दैट इज द वेरी प्रॉब्लमेटिक टास्क। फिजिकली अगर तुम इस चीज को करने जाओगे, सो दैट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक टास्क कि हाँ ये इस तरह से पॉसिबल ही नहीं है। हम कैसे इस तरह का पॉसिबल कर पाएंगे कि हाँ हर बार हम चेंज करते रहे, हर बार हम चेंज करते रहे, इस चीज को चेंज करते रहे। तो लैन को मैं फिजिकल जो लैन क्रिएट किया था, वो फिजिकल लैन को हर बार मैं चेंज करता रहूं, सो दिस इज नॉट ए फिजिबल टास्क, दिस इज सिंपली नॉट ए फिजिबल टास्क। सो दैट्स व्हाई दिस वर्चुअल लैन का कॉन्सेप्ट आया। वर्चुअल, वो लोग क्या किया कि हम लोग एक काम करते हैं, मतलब कंपनी वाले सोचा यहाँ पे फिजिकल ना करके एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हार्डवेयर नहीं, वो जैसे भी लैन से जुड़ा हुआ है जुड़ने दो, बट हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उस सॉफ्टवेयर में मैं कैसे भी लैन में कैसे भी कनेक्टेड है, इवन अगर ये दो पर्टिकुलर बिल्डिंग में भी कनेक्टेड है, तो भी वो सॉफ्टवेयर क्या किया, कोई आईपी एड्रेस उसने कलेक्ट किया, और आईपी एड्रेस कनेक्ट करने के बाद कुछ ग्रुप पीपल क्रिएट कर दिया। दैट सॉफ्टवेयर विल डू, सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, हो सकता है कि तुम लोग का जो लैन है वो मल्टीपल बिल्डिंग में ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, या मल्टीपल फ्लोर में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर तुम्हारे पास कंपनी में 5 फ्लोर है,
तो पांचों फ्लोर के लिए एक एक लैन तुम यूज करोगे, एक लैन से तो पांचों फ्लोर को नहीं दोगे, 5 फ्लोर को लिए एक लैन यूज कर रहा है। तो अगर मान लो ये फ्लोर 1 है, ये फ्लोर 2 है, फ्लोर 3 है, दैट डज नॉट मैटर किस फ्लोर में है, वो क्या करेगा, लॉजिकली एक ग्रुप क्रिएट करेगा थ्रू प्रोग्राम मींस थ्रू सॉफ्टवेयर, लॉजिकली एक ग्रुप क्रिएट करेगा। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वर्चुअल लैन, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वर्चुअल लैन। सो दो तीन ग्रुप को, 2-3 मशीन जिसके साथ भी वो ग्रुप बनाना है, it will change it on track, randomly we can change it. That's the main advantage of this particular virtual LAN. So physical LAN actually बार बार चेंज करना मुश्किल है, फिजिकल लैन को बार बार चेंज करना और उसको फिर से चेंज करके फर्स्ट में वापस लाना, ये सब बहुत प्रॉब्लमेटिक टास्क है, बहुत प्रॉब्लमेटिक टास्क है। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए उसी चीज को सॉफ्टवेयर के थ्रू करने का कोशिश किया गया। सॉफ्टवेयर विल मेक द ग्रुप्स that may be connected within a single LAN, that may be connected within separate LANs, 2, 3, 4 LANs से भी अगर जुड़ा हुआ है, then also it can connect। 4 अलग अलग LAN से भी ये लोग जुड़ा हुआ है, तो भी ये ग्रुप पीपल क्रिएट कर दिया, and that is like a LAN, like a LAN। that means कैसे ये वर्क कर रहा है। अगर किसी को मैसेज सेंड करना है ग्रुप 1 पीपल को, दैट पर्टिकुलर ग्रुप उसने बनाया है, दैट पर्टिकुलर थिंग मैं मैसेज सेंड करूंगा, दैट पर्टिकुलर ऑल दिस थिंग्स, वो सारे जो जिस ग्रुप से कनेक्टेड है उस ग्रुप के पास ये पहुंच जाएगा। सो दैट इज द सिंपल थिंग डन इन वर्चुअल लैन। कैन इट गिव एक एग्जांपल सोच सकते हो इसका? एग्जाम्पल सोच सकते हो इसका? व्हाट्सएप ग्रुप इज ए स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल लैन। व्हाट्सएप ग्रुप इज ए small example of virtual LAN. Simply try to understand that is the virtual LAN. जो जीमेल में हम लोग ग्रुप मेल बनाते हैं, that is like a virtual LAN. So वो क्या किया, एक सिंगल एड्रेस किया है, और उस एड्रेस को मैं सेंड करूंगा तो उस एड्रेस के अंदर बहुत सारे एड्रेस जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज ग्रुप्ड बाय ए सॉफ्टवेयर, दैट इज क्रिएटेड बाय ए सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल लैन। सो ये वर्चुअल, जैसे कि मैं इस ग्रुप मेल में सेंड कर रहा हूं, सारे के पास डेटा पहुंच रहा है जो कि उस ग्रुप मेल में जुड़ा हुआ है। दैट्स द सिंपल थिंग इज डन इन वर्चुअल लैन। Is that okay? Now virtual LAN कैसे ये कनेक्ट कर दिया गया? Simply try to understand. So here is the switch, and switch से हर मशीन जुड़ा हुआ है, हर मशीन जुड़ा हुआ है। And now अगर तुम्हें virtual LAN बनाना है, सिंपल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये देखो, ये 4 अलग अलग सिस्टम में था, ट्राई टू अंडरस्टैंड हेयर। ये 4, ये यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, बट जब वर्चुअल लैन में क्रिएट कर रहा हूँ, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 4 मान लो फर्स्ट ग्रुप 1 से है, ये 4 मान लो, ये 3 मान लो ग्रुप 2 से है, ये 3 मान लो ग्रुप 3 से है। बट जब वर्चुअल लैन क्रिएट हो रहा है, कोई भी ग्रुप का 2 मेंबर या एक मेंबर को लेके मैं ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ। दैट इज ग्रुप 1 वर्चुअल लैन 1, दैट इज वर्चुअल लैन 2, दैट इज वर्चुअल लैन 3। दिस इज डन बाय सॉफ्टवेयर, VLAN software. Am I clear? मैं क्लियर कर पाया? इवन अगर ये सेम स्विच के अंदर नहीं है, अगर ये सेम स्विच के अंदर नहीं है, मान लो ये सेम स्विच के अंदर है तो वर्चुअल लैन क्रिएट हो रहा है। अगर ये सेम स्विच के अंदर नहीं है, अगर ये सेम स्विच के अंदर नहीं है, तो भी हम लोग वर्चुअल लैन क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज। 2 स्विचेस, अगर देखो यहाँ पे बैकबोन स्विच एक है, वो स्विच से ये 2 स्विच कनेक्टेड है,
एंड इवन दे आर, दैट मीन्स ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है, दो स्विच लगा हुआ है, that then also we can connect with this particular VLAN software, we can solve this problem. That means अब मेरे लिए बहुत आसान प्रॉब्लम हो गया। कुछ दिन बाद लगा कि हाँ ये दोनों को, इसको मैं मुझे यहाँ पे भेजना चाहिए फॉर फॉर इसको थोड़ा सा पुशअप करने के लिए, इसका वर्क को थोड़ा सा पुशअप करने के लिए मैं उसको इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को मैं इसके पास भेजना चाहिए ताकि ये थोड़ा सा फास्ट काम करने लगे। तो मैं कुछ दिन बाद क्या करूंगा, इसको इस VLAN से हटा के, मतलब सॉफ्टवेयर में जाके इस VLAN से हटा के यहाँ पे इस VLAN के साथ मैं जोड़ दिया। दैट मीन्स मैं फर्दर जैसे ही ये इसके साथ जुड़ गया, इसके के लिए जो मैसेज था वो नहीं रिसीव करेगा, बट इसके लिए जो मैसेज तक था, इसके लिए जब भी मैसेज भेजा जाएगा वो रिसीव करने लगेगा। दैट इज अ सिंपल थिंग is done in virtual LAN. Am I clear? मैं क्लियर कर पाया तुम लोगों को? बोलोगे? So that is a simple technique is VLAN. VLAN concept comes there. VLAN is virtual LAN. That means मैं physically LAN नहीं create कर रहा हूँ, मैं LAN create कर रहा हूँ but using virtual, using software, and that is mostly used by the companies. This VLAN technique mostly uses in companies. कंपनी में ये चीज बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है। Without virtual LAN software they cannot group together. जब भी तुम्हें ये कंपनी में जाओगे, कंपनी में देखना ये VLAN से तुम लोग जुड़ जाओगे। दैट मीन्स जब भी तुम्हारा प्रोजेक्ट असाइन होगा, तुम्हारा कंप्यूटर के साथ उस कंप्यूटर में जब भी लॉगिन करोगे या इस चीज करोगे, तुम्हें दिखाएगा, शो करेगा कि तुम इस ग्रुप के साथ काम कर रहे हो। तो जब भी तुम्हारे पास मैसेज भेजा जाएगा, उस पर्टिकुलर ग्रुप के थ्रू मैसेज भेजा जाएगा। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर LAN के थ्रू मैसेज भेजा जाएगा। भले तुम फिजिकली कनेक्टेड हो, तो फिजिकल LAN चेंज करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। फिजिकल LAN के बाद भी, फिजिकल LAN जुड़ा हुआ है, बट फिजिकल LAN के बाद भी तुम्हारे पास एक और सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, सॉफ्टवेयर सर्वर से वर्क करेगा, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द प्रोजेक्ट मैनेजर मशीन। प्रोजेक्ट मैनेजर मशीन में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा एंड ही कैन ट्रीट यू अकॉर्डिंग टू हिम कि कहां पे इसको काम करना चाहिए, एंड ही विल असाइन टू यू दैट विद इन दैट ग्रुप। एक दिन बाद तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। एक दिन ये होता है नॉर्मली एम्प्लॉय के साथ कि एक दिन जाके तुम इस ग्रुप के साथ काम कर रहे हो, नेक्स्ट ग्रुप जाके देखे कि मेरा ग्रुप चेंज हो गया। so, तुमको उस ग्रुप में जाके फिर एडजस्ट करना होता है। सो दैट द सिंपल टेक्निक डन इन VLAN software. This is virtual LAN. Am I clear? So VLAN create broadcast domains. That's the simple thing VLAN works. VLAN actually creates the broadcast domain. It maximum work is done here. It will create the broadcast domain. That means whenever broadcast किया जाएगा तुम्हारे लिए मैसेज, वो जब भी तुम्हारे पास तुम्हारे ग्रुप के लिए मैसेज आएगा, दैट इज द थिंग मैं बोल रहा था तुम्हें। ये जब भी इससे यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये इसके साथ ब्रॉडकास्ट जो इसके लिए मैसेज जो आ रहा था, वो मैसेज वो रिसीव करना बंद कर देगा, और इसके लिए जो मैसेज आ रहा था वो रिसीव करना स्टार्ट कर देगा। दैट इज एक्चुअली ब्रॉडकास्ट डोमेन। इट इज टेलिंग ब्रॉडकास्ट मीन्स मैं एक बार में सेंड करूंगा, मैं सबके पास ये पहुंच जाएगा, मैसेज पहुंच जाएगा। Simply this is done in WhatsApp group or a group mail like this. Simple is like this. Simply it is created a virtual LAN create किया हुआ है और ग्रुप बना दिया गया, और मैं एक मैसेज करूंगा, सबके पास मैसेज पहुंच रहा है। This is a broadcast domain. Actually it creates broadcast domain. VLAN creates the broadcast domain. Am I clear to you? मैं क्लियर कर पाया पूरा टॉपिक? That is over. Your topic is over. So simply what I have understand that today backbone network has 3 types. One is bus backbone, star backbone, and remote LAN. So bus backbone is here. Bus backbone in between 2 bridges, multiple bridges.
हर एक लैन के साथ एक ब्रिज रहेगा, उस ब्रिज से जोड़ने के लिए एक लैन क्रिएट हो रहा है, एक बस क्रिएट हो रहा है, उस बस से ये हर ब्रिज जुड़ा हुआ है। दैट इज सिंपल टेक्निक, इज बस बैकबोन। दैट सेम थिंग वी डन इन स्टार, दैट इज बाय स्विच, एंड सेम थिंग बाय स्विच। ब्रिज अगर पॉइंट टू पॉइंट लिंक से जुड़ा हुआ हो, दैट कॉल्ड रिमोट लैन। नेक्स्ट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस वर्चुअल लैन। वर्चुअल लैन कैसे यूज होगा, क्यों यूज होगा, मैं बता चुका हूं। दैट इज अगर फिजिकली कनेक्टेड तुम हो भी तो भी हम लोग एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक लैन बनाने का कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक वर्चुअल लैन। दिस इज वर्चुअल लैन, वर्चुअल लैन, वर्चुअल लैन। वी आर एक्चुअली ग्रुपिंग द पीपल्स। मैं पीपल्स को जो भी जिस लैन से भी वो जुड़ा हुआ हो, मैं ग्रुप करने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि ब्रॉडकास्ट मैसेज मैं सेंड कर सकूं। सिंपल ग्रुप मैं बना रहा हूँ ताकि ब्रॉडकास्ट मैसेज मैं सेंड कर सकूं। सो बेसिकली VLAN क्रिएट्स द ब्रॉडकास्ट डोमेन। इज द थिंग क्लियर टू यू? Class is over. Thank you. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Okay. Okay, thank you. Next class करो.